हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द वर्ल्ड वॉर वन। देर इज अ वर्ल्ड वॉर वन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द हेयर industrialization, colonialism, and imperialism create intense of areas among their European nations over their possessions of colony in Asia and Africa. This competition became more acute by the end of 19th century, when the colonies were no longer available in Asia, Africa. Compromise was not possible due to the mature is a distrust and hostilities. And in 1940, a war began in Europe, which soon infected there is the entire world. It involved all the major countries of the world and their colonies. The damage caused by this war had no precedent in history. For the first time in history, all the resources of warnings state were mobilized. It involved their army, navy, and air force. The civilians' population suffering to the tremendous is casualties is because the indiscriminate of bombing. Since the world was spread over a very large of the world for the first time, you know that the spread of the war, there is a world faced for the first time. It is now as World War One. There is a now as the World War One. It's a mark a turning point in the world history. It was not a sudden occurrence but a culmination of large number of force and development is covering a long period before 1914. There is 1914. There is the most important period time of now the First World War. According to First World War, the next point here, causing of World War One. Why there is a causing of World War One here? The imperialist rivalries is among the different nations like England, France, Germany, and other were major cases of war. Alien war where is awarded because the possibility of acquiring more colonies were still there. But the situation had now changed. Most of Asia and Africa had already been divided up and is a possibility of further expansion were not there. It was possible only by the disposing some imperialist country their colony. And this division of colony create a condition of war. In the last quarter of 19th century, Germany had made a tremendous its economic and industry progress and left England and France far behind in the industry production. She needed a colony as much as a Britain to be fulfill her economic needs. In the imperial race, Germany became a main is a competitor of England, and British and naval supremacy was also changed when Germany built their large warship Imperator and built the Kells Canal connected the Northern Sea and Baltic Sea, endangering the England coastal line. Germany also built a railway line connected to the Berlin and Baghdad, and which made it easier for Germany to be sent as troops as a supplier to be east. But it posed a threat to be British colonies there. Like Germany, all over the major power of European and Japan, also there is a imperialistic ambition. Like Germany, all other major power of Europe and Japan also had their imperialist ambition. Italy, after the unification, wanted to the Tripoli in the North Africa, which under Ottoman Empire. There is Ottoman Empire, and France want to be odd Marcos to be
is a conquest in Africa, while the Russia had their ambition in Iran. Japan had there is ambition in the far east where the sea is able to be extend their influence after the Russo-Japanese War of 1905. Russo-Japanese Wars of 1905, there is an important war. Austria had their ambition in the Ottoman Empire, while the United States of America was slowly emerging as a powerful nation. The United States of America was slowly emerging a powerful nation. Here, main interest was to be preserve their independence of trade as it was increasing at a fast pace. The expansion and influence of any great power was opposing a major threat to the world peace. The next year, system of alliance. There is, according to the World War One, system of alliance. The confessed and confirmation nations for more colonies is promoted their imperial power to took the allies. In 1882 is Germany, Austria, and Italy signed the Triple Alliance, pledging a mutual military assistance against the rival powers. England and Russia and France signed to be Triple Entente in 1907. Emergence of two mutually opposed groups in divided Europe into the hostile campus and leading to the tension and conflict among the European power. And these countries is competed with one another in producing deadly weapon, which lead to a race of is armaments. A mutual hatred as suspensions as a distributed their atmosphere of the pace. The propaganda which has created made is clear that if war is broke out, their wall of Europe would be drained into it. According to World War One, the next topic is the most important arrive here, a Pan-Slav movement and Balkana politics. That is important. Pan-Slav movement and Balkana politics. Balkana region of Eastern Europe consisted of many states such as Greece, Romania, and Bulgaria, and Serbia, and Montenegro, and many other small states also here. And originally these states were under the control of the Ottoman Empire or the ruler of Turkey. By the beginning of 20th century, the Ottoman Empire began to decline. That is, the Ottoman Empire began to decline, and European power, including Austria and Russia, as a result for the obtained a foothold in the region. The matter of got complicated with the resonance of nationalism among the people in most of these states. Then where is called to the Slavs. This where is called Slav. What is Slavs here? The matter got complicated with the resurgence of nationalism among their people in most of these states. There is called Slavs. Sandevar is scattered in many of Eastern Europe states, and they started a national movement called Pan-Slav movement. There is a Pan-Slav movement is a national movement. The main demand was the entitlement of Slavs is one of state under Siberia, and the state which had to be a large slave of population in this movement. There is a largest Slavs is a population participate in this movement, and Siberia was supported by the Russia, and whereas the Austrians opposed to the city Siberia and the national movement. There is an important point here. Siberia was supported by the Russia, and whereas the Austrians is opposed Siberia and their national movement, and this resulting in the rebels between the Russia and Austria. Austria did not be bound to a strong Siberia state, which would be hamper their ambition of expansion. In 1908, Austria annexed to the two Slav states. There is two Slav states in this time is a Bosnia and the Herzegovina, and the leading to the hostile of between the Siberia and Austria. Between 1912 and 1914, for Balkana state is a fought. There is a two war against two Ottoman Empire for independence.
and Turkey was defeated and lost all the positions and Europe. Austria hardly set up independent state of Balkania and against Siberia, ambition of Great Siberia, and hostility is mounted between to Austria on his side and Siberia as Russia on other. This is important here. The hostility is mounted between to Austria and one side of Siberia and Russia on other. That is important. As you can see, by the 1914, their atmosphere was explosive. Against this background, Akarkodovs, Francis Alfred Dant, and there's to be Austrians don't went to be Sarajevo and the capital of so Zina and other state visit. As he was getting down from his car and he was assassinated by Savarian youth on 28 June 1914. The murder of the Archduke Franz Ferdinand and become the immediately case of the war. There is the most important point here, and also is asking for the UPSC exam, not question on exam time. The recently causing of the war. First of all, a recently causing. There is immediately causing here. There is immediately causing here is a Siberia youth on 28 June 1914, the murder of Archduke Francis Ferdinand because they immediately causing here. Austria held the Siberia responsible for this assimilation of their princes as here with an ultimatum of the various conditions. There are the Austrias is the give to the ultimatum for this murder and assured there is Russian help. Siberia refused to be accept the ultimatum and start to the mobilizing airdrops on the border. On 28 July 1914, Austria is declared war on the Siberia. There is recently immediately current of the First World War. And on the August 1914, Germany declared war on the Russia. On 3rd August 1914, Germany declared war on France. As a German troops entered Belgium and England declared war of Germany on 4th August 1914. Thus, a minor incident in Europe and triggered with the war with all the countries joined in, which soon took the shape of World War I. That is the most important question here. According to World War I, the next point here, the causes of the war. The causes of the war, there is a 1914 to 1918. This is period time the war. The World War I, which is started in August 1914, continued till November 1918. During this period, many important battles were fought, such as a battle of Marne in 1914, Battle of Verdun, Battle of Amiens, and Battle of the Jutland in 1916. The year is 1917, such two important developments. One was the entry of USA into the war in April, and second was the withdrawal of Russia from the war of November. There is a most important, there is a development in this period time here. In 1915, a British passenger ship Lusitania was sank off a Germany boat, killing of 128 USA civilians and who were traveling in the sea. The USS Santos took a very serious view on this. Santos, there is a rule making department. There is the USA, and USS Santos took a very serious view on this incident. There is a 128 US civilians is here die. And besides become a powerful nation, Germany would be pose a threat to the USA supremacy. And however, USA began to major supply of arms and the ammunition. There is a continuations of the war would result in economical advantage for the USA. And keeping all this in a view, she decided to join the war in 1917. That is important. Do you remember
Regarding about the October Revolution of 1917 in Russia, one of the main demands of the revolutionaries was peace. So immediately after the revolution under the leadership of Lenin, Russia and withdrew from the war and signed to peace treaty with Germany in 1918. By July 1918, Germany began to cause collapse, and Bulgaria and Turkey surrounded in their September and October respectively. There is a most important in this time. By the July 1918, Germany began to collapse, and Bulgaria and Turkey surrounded in the September and October respectively. On 3rd November in 1918, the Austrian Empire surrounded due to the spirit unrest in Austria. After similar revolt by the German people and German Empire, Wilhelm's II, the federal Holland and Germany was a proclaimed a republic. The new government signed as a armistice on 11 November 1918 and bearing and the end to the World War I. That is important here. In the course of the war, many new weapons such as a machine gun, poison gas, liquid fire, submarine and tank were used. There is a this time of making a new weapon like that machine gun, poison gas, liquid fire, submarine and tank were used. New struggles as a military techniques were experimented by both sides. England used navals and economical is blockade, tanks and air warriors. The French use a trench as a welfare. Germany use a U-boat and submarine to sink ship under the sea. The next point here, immediately consequence of World War One. Immediately consequence of World War One. The World War One was one of the most disasters and fightings even the world had a witness. A million people, including innocent and civilians, lost their lives. There was a large scale of damage of property in most of the European countries. The total expenditure was estimated at the staggering of fight of $180 billion. There is a 180 billion dollar. There is a most important on the war. The economical of the most of country was shattered is resulting in the social tension, unemployment and poverty. There is a important for here. Between January and June 1919, the Allies power met a conference in the places as Versailles, the Paris to decide to the future of defeated powers. Though the representatives of nearly 27 countries attended the conference, the discussion was taken by the head of state of Britain. France and USA also. There is a 27 countries attend their conference. The decision was taken by head of state of Britain, France and USA. Russia was excluded and the defected power were not allowed to be attend. The Allies signed different treaties with their defeated powers. The most important them were the Treaty of the Versailles signed with Germany, the Treaty of the East Germans with the Austria and the Treaty of Sub with the Turkey. That is important. The Treaty of Versailles shattered Germany as politically, economically, and militarily, and Germany was held guilty for aggression and was asked to pay a hug amount of money as a compensation for the war. There is a turning point for here. The Second World War in the rise and this reason. The Treaty of Versailles is shattered Germany politically, economically, and militarily. Germany held to the guilty of aggression and was asked to pay a hug amount of money, a compensation for the war. Alaska is a area which where is a take from France in 1871 and were to be returned to the France. Another land of the land between the France and Germany was demilitarized
and both under control of Allied power. Also is the reason for Second World War here. The coal-rich Saar and Valley was given to France for 15 years. The coal-rich Saar Valley was given to the France for 15 years. Germany army was disbanded. Ship were sunk and the army was restricted to the 1 lakh soldier only. The Germany was despaired of all her colonies. Much of the territory in Europe were given to the Belgium and Poland. The territory of the East Germans separated to Hungary, where Austria and Hungary was made a independent state on this period of time. And Austria had to recognize the independence of Hungary and had to be give part of territory to the Slovakia, Romania, and Yugoslavia. There is the most important three states in this period times here. Czechoslovakia and Romania and Slovakia. The treaty itself was a block of the Ottoman Empire, and some of these states were given to the Allied power and maintained. Example of Palestine or Mesopotamia were a give of Britain and Syria to France. There is a important here. The Palestines in the Mesopotamia were given to Britain and Syria to France, and their life power were took after this country till they become a self-reliant. That is important here. The war and the peace state is transforming the political map of the world, and particularly Europe. You know that there is change of the political map of the world, and particularly for the Europe. After the October Revolution in Russia, the ruling ascendancy of the Romanovs and the warmth is overwhelmed by the end of the war. And Hohenzollern, the century of Germany, and is a Habsburg, country of Austria were removed and republic government was set up. There is important here. The Habsburg, the century of Austria were removed and republic government was set up. Monarchy was also established in this Turkey after the revolution in 1922. Monarchy was also abolished in Turkey after the revolution in 1922. And two new states, Czechoslovakia and Yugoslavia. There is a new two states. There is a Czechoslovakia and the Yugoslavia. There is a create out of territory taken from to the defected powers. And Hungary emerged as an independent state on this period of time. The Hungary is emerged as on the independent state. The blasted states such as the Estonia, Lithuania, and Latvia and the Finland, whereas made a independent state. The states of Romania and Poland were enlarged in size. The state Romania and Poland were enlarged in size. All the changes to boundary of most of the states of Europe. All there is important. It was evident that the pay settlements were discarded and unequal settlement which were imposed upon the defected power. They had no say in the deliberations. There is the end of the war, say the end of European supremacy and emergence of USSR and the USS, a major power on this time. There is a supremacy of emergence of USSR and USA, a major power. The period also sees the strengthenings of national movement in the countries of the Asia, Africa. There is a important. The period also says the strengthening of the national movement in the country of Asia and Africa. Even before the war ended on November 1918, the USA President Woodrow Wilson had approached to the pace of program now as the Wilson as a 14 point. The most important point was proposal for the establishment of international organization, the maintaining peace and security in their world. On the basis of the proposal, the legal and national set up in 1920,
there is a most important thing for the will mention for in point here. There is a proposal for their organization of the international organization maintaining. There is the only here a main. There is a role here security on the world. The next point here, the legals of nation. The League of the Nation is the first international organization set up in 1920, which is a headquarter of Geneva. The headquarter of Geneva, its a main aim were to maintain and peace and security in the world and prevent future war, promote to international cooperation, settle international debt and peacefully, and improve to condition of laborers in member country. There is a most important aim on the legals of nation, but fail. But fail because 20 year after the Second World War arise. There is totally failed legal of nation here. But there is important is a member of country, but unfortunately there is a legal fail to be prevent of war confessed which is a was set up when the Italy attacked Ethiopia in 1935. You know that the legal of nation totally here fell. There is a reason why Italy attacked the Ethiopia in 1935 and Japan attacked the Manchurias in 1936. The legal could not be nothing. Also, mutual rivals among the nation for the possessions of colonies continue exposing their imperial ambition. There is a legal of nation here totally failed. कहते हैं एक ऐसा वॉर था जो पूरे दुनिया को जो हिला के रख दिया और मानव कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसी वॉर जीवन में कभी देखना पड़े। कहते हैं इसमें जनजीवन को जितना नुकसान हुआ उससे भी अधिक क्षति जो हुई पर्यावरण को हुआ और इस युद्ध ने एक बात तो बता दिया कि युद्ध कभी भी सही नहीं होता है आम जीवन के लिए। और कहते हैं ये युद्ध इतनी विनाश किया जिसकी जो है कल्पना भी करना संभव नहीं था। दोस्तों हम यह बात जो कर रहे हैं आज प्रथम विश्व युद्ध की। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध वो ऐसा युद्ध था जो जान माल के साथ जो है हमें पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और इंसानों ने इसे सबक नहीं लिया। इंसानों ने कहते हैं जब कुछ गलतियां होती है तो इंसानों को उससे सीख मिलती है और इंसान की बात तो छोड़िए, इंसान तो इसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। मेन रहते हैं बड़े बड़े लीडर सब और लीडरों को ये बात समझ कभी नहीं आई है कि कभी भी युद्ध जो होता है उनके समाज के लिए, उनके प्रजा के लिए और उनके देश के लिए कभी हितकर नहीं होता है और युद्ध सदैव ही विनाश का कारण बनता है। और ये सारी बातें प्रथम विश्व युद्ध में देखने को हमें मिला और प्रथम विश्व युद्ध इतनी भयंकर थी। कहते हैं कोई भी विशेषज्ञ इस बात पे कल्पना नहीं कर सकते कि ये युद्ध कभी दोबारा कभी हो, लेकिन फिर भी जो 20 साल के बाद दोबारा युद्ध दोहराया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और वही गलती आधुनिक युग में भी किया जा रहा है। 21वीं शताब्दी में भी वही गलती अब दोहराया जा रहा है जो यूक्रेन के साथ युद्ध यहाँ पर छेड़ा गया है। और कहते हैं कई साल हो गए हैं युद्ध चलते हुए लेकिन अभी तक कोई विराम का कोई चिन्ह भी नज़र नहीं आया। तो इन्हीं सभी बातों पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू के जिसमें प्रथम विश्व युद्ध होगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और हर एक वीडियो जो है देखना आपको चाहिए और आप समझ जाओगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ तो आने वाला समय में आपको थर्ड का भी वीडियो मिल ही जाएगा क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है अभी प्रेजेंट में ही हो रही है और ये होगा भी। कहते हैं ये तो सिर्फ सुलगाया गया है, एक चिंगारी डाली गई है, अभी तो पूरे आग लगना बाकी है। और यही बात यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में जो कंडीशन पैदा हुआ वही 21वीं शताब्दी में भी यानी आज के समय में भी पैदा हो रहा है। वही सिचुएशन, वही कंडीशन, वही लालसा। तो चलिए अधिक बात ना करके हम देखें प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से शुरू हुआ और इसका परिणाम क्या निकला और इससे दुनिया को क्या मिला। यदि हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, कहते हैं औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ने एशिया अफ्रीका में उपनिवेश की उनकी संपत्ति पर यूरोपीय देशों के बीच
तीव्र प्रतिद्वंदता शुरू कर दी। यानी देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के कहीं ना कहीं कारण का जो सूत्रपात हुआ वो औद्योगिकरण के कारण हुआ, उपनिवेशवाद के कारण हुआ और साम्राज्यवाद के कारण हुआ। अब देखिए औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का अर्थ होता है जो अपने उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना। यानी उस समय इंग्लैंड जो था, कहते हैं पूरे देश से सभी देशों को जो है उपनिवेश बना के वहाँ से कच्चे पदार्थ हासिल करता था और उससे मैन्युफैक्चर करके जो है उन्हीं देशों में भेज देता था। क्यों भेजता था? क्योंकि उनके पास अधिक टेक्नोलॉजी थी, और टेक्नोलॉजी रहेगी तो आप सोचिएगा अगर मैंने सामान बना लिया, क्या हम स्वयं तो यूज़ नहीं कर सकते ना, किसी न किसी देश में तो हमें भेजना पड़ेगा और वहाँ से अपने फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो इंग्लैंड ने यही बात किया। इंग्लैंड ने साम्राज्यवाद की नीतियों को अपनाया और कई देशों को जो है उपनिवेश बनाया और अपने औद्योगिकरण के जो समय था उसका सामान जो है पूरे देशों में बेचा। तो आप समझ गए होंगे कि औद्योगिकरण क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है। जैसे भारत को भी अंग्रेजों ने 250 साल तक जो है उपनिवेश बना के रखा, और साम्राज्यवाद का मतलब यही होता है कि अपना साम्राज्य जो है किसी देश में जाके स्थापित करना। और इस समय जो है हर देश इसमें प्रतिद्वंद्वी शुरू हो गई। हर कोई जो है किसी न किसी देश को जो है अपना उपनिवेश बनाना चाहता था और अपना जो है माल खपाना चाहता था। जैसे आज के समय देखिए चाइना जो है सारे अपना माल जितने भी होते हैं वो इंडिया में खपाना चाहता है, ठीक है। इवन कि अमेरिका भी यही करने के फिरात में है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास सारे संसाधन हैं और इंडिया में अभी संसाधन की कमी है। और देखा जाए तो इंडिया वाले भी वही गलती कर रहे हैं जो उस समय अंग्रेज किया करते थे, यानी जो है विदेशों वालों को भारत में आमंत्रित करना। ऐसे ही राजा महाराजाओं ने भी किया। और आपको पता है कि हमारी राजनीति ऐसी है जहाँ पर तू मैं हमेशा होती ही रहती है। तो वही बात होगी, घर घर का भेदी लंका ढाए, तो लंका ढह जाएगा ऐसे चक्कर में, क्योंकि हमारे देश में पार्टियों में एकता नहीं रहती है। कोई भी घटना घटती उनमें एकता तो रहती नहीं है, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। और ऐसा ही हुआ था जब राजा महाराजाओं के टाइम था, वहाँ पर मंत्री जो थे अपने आप को राजा बनाने के फेर में रहते थे और इस वजह से देश से गद्दारी किए और देश जो है 250 सालों तक जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। और वही कंडीशन आज भी देखने को हमें मिल रहा है, राजनीतिक में दिख रहा है। तो चलिए जो भी है, हमें इस पर अधिक नहीं जानना है। हमें तो ये पता है कि हमारा देश जो है उपनिवेश फिर से बनने में अग्रसर है, क्योंकि विदेशी लोग जो है भारत में आमंत्रित हो रहे हैं और यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो जनरल सी बात है, यहाँ के लोग जो है मजदूर बनेंगे और वहाँ के लोग जो है मालिक बनेंगे। तो हो गया वही सिस्टम जो पुराने समय में था। तो यही हर देश की लालसा होती है। भारत ये कभी नहीं किया कि दूसरे देशों में जो है अपना फैक्ट्री लगाए। अगर ऐसा होता तो भारत शायद आज जो है कहाँ तक पहुँच जाता, इसका कल्पना अभी नहीं कर सकते। लेकिन भारत तो सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है दूसरे देशों के बना हुआ सामान। और भारत में जो है दूसरे देशों का सामान आके भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आज मेड इन इंडिया का नाम दे दिया गया है। कहते हैं जब हमारे देश में क्या टैलेंट नहीं है, क्या हम कोई सामान को बनाने में सक्षम नहीं है? हमारे देश में टैलेंटों की कमी नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो कि कहते हैं बड़े बड़े देशों को जो है चकमा देने के लिए अग्रसर हैं, लेकिन यहाँ को जो नौजवान हैं उनको मौका नहीं दी जाती है, उनके मौका छीन लिया जाता है। और ये सारे नौजवान जो है विदेशों की तरफ रुख कर जाते हैं। कहते हैं जब अपने घर में कोई नहीं पूछेगा तो जनरल सी बात है दूसरे घर में तो जाना ही पड़ता है। तो यही रूल यहाँ पर भी हुआ। कहते हैं उस समय प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई कि यह प्रतियोगिता 19वीं सदी के अंत तक और अधिक तीव्र हो गई। यानी जो प्रतियोगिता थी उपनिवेश बनाने की, कहते हैं 19वीं सदी के अंत तक और अधिक तीव्र होती चली गई। और जब उपनिवेश एशिया और अफ्रीका में न उपलब्ध थे तो कहते हैं समझौता और आपसी अविश्वास और दुश्मनी के कारण संभव नहीं था। और 1914 में यूरोप में जल्द ही पूरी दुनिया से घिरा एक युद्ध हुआ। यानी कहते हैं कि 1914 में यूरोप में जल्द ही पूरी दुनिया से घिरा एक युद्ध हुआ जिसमें दुनिया के सभी प्रमुख देश और उनके उपनिवेश को शामिल किया गया। इवन कि भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था, लेकिन उस समय भारत उपनिवेश था। और इस युद्ध की वजह से नुकसान के इतिहास में कोई मिसाल नहीं थी। यानी इतना नुकसान हुआ जिसका इतिहास में कहीं भी कोई जिक्र नहीं थी। और इतिहास में पहली बार
के लिए जो है धृत राज्यों के सभी संसाधन जुटाए गए थे और इसमें उनकी सेना, नौसेना, वायुसेना शामिल किया गया था। नागरिक आबादी को धनाधूर बमबारी की वजह से जबरदस्त संख्या में दुर्घटना का सामना करना पड़ा। कहते हैं इस युद्ध में जिस सबसे अधिक नुकसान होता है तो वो होता है आम नागरिकों की, जो निर्दोष होते हैं, जिनका कहीं भी कोई हाथ नहीं होता, वो लोग मारे जाते हैं। युद्ध तो हमेशा दो विचारों का होता है। युद्ध जो हमेशा होता है दो विचारों का होता है। इसमें नागरिकों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मान लीजिए कोई मंत्री दूसरे देश में गया है, वहाँ पर उसका थोड़ा सा कुछ भी इंसल्ट भी ना हो, लेकिन वो बना देगा कि मेरा इंसल्ट हुआ है, हम तो उसे युद्ध लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब इतने चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर देना, ये कहाँ तक समझदारी है। और आज प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो रहा है। यूक्रेन जो युद्ध लड़ी जा रही है यूक्रेन के साथ, सिर्फ कहते हैं कुछ गज ज़मीनों के लिए लड़ी जा रही है, जिसको समझौता करके भी टाला जा सकता है, लेकिन समझौता के जगह पर वो हम की भावना में वो लोग लड़ रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो यूक्रेन की जितनी भी जनजीवन थी वो तहस नहस हो गई है। तो कहते हैं पुराने दो दो युद्ध, इतने विश्व युद्ध हुए, उससे हमने कोई भी सबक नहीं सीखा। और इतिहास में जो नुकसान हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, उसकी गणना करना शायद संभव नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए यह युद्ध जो है पहली बार के एक बहुत बड़े भाग पर फैल गया था और इस विश्व युद्ध की दुनिया के इतिहास में एक मोड़ के रूप में जाना जाता है। और यह अचानक घटी घटना नहीं थी, बल्कि सेना के विकास और 1914 से पहले से चल रहे विस्तार की चरम सीमा थी। कहते हैं कोई युद्ध जो होती है सडनली नहीं होती है, इसका सूत्रपात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहले ही हो जाती है। और ऐसा ही हुआ 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ी गई, उसका विस्तार पहले ही हो चुका था। पहले ही देशों ने आपसे समझौते करने लग गए थे और ये युद्ध को जो है अनिवार्य बना दिया था, क्योंकि उस समय हर देश को जो है उपनिवेश चाहिए था और उपनिवेश के होड़ में ये युद्ध जो है करवाया गया। और वो तो कहते हैं छोटे मोटे इंसिडेंट तत्काल कारण बनी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखिए यहाँ पर जो है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। कहते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और दूसरी की तरह विभिन्न देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता साम्राज्यवादी युद्ध का एक प्रमुख कारण था। मैंने पहले ही बताया कि साम्राज्यवादी युद्ध का प्रमुख कारण था कि हर देश जो है अपने आप को साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, दूसरे देशों में अपना उपनिवेश चलाना चाहता था। इससे पहले युद्ध टल गया क्योंकि अधिक उपनिवेशों के अधिग्रहण की संभावना अभी भी वहाँ थी, इसलिए पहले युद्ध टाली जा रही थी। लेकिन जब स्थिति बदल गई तो अधिकांश एशिया और अफ्रीका को पहले से ही विभाजित किया जा चुका था, यानी पहले ही इस युद्ध का जो है सूत्रपात कर चुका था और एशिया और अफ्रीका को पहले ही विभाजित किया जा चुका था और आगे विस्तार की संभावनाएं वहाँ नहीं थी। कहते हैं जब विस्तार की संभावना नहीं होती है तो जनरल सी बात है हम दूसरे जगह को छीनने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यापारी है, कहीं वो व्यापार करता है, वहाँ पर दूसरा व्यापारी अगर आ जाता है वही सामान बेचता है, तो जनरल सी बात है उसमें युद्ध होगा ही होगा। और यही हुआ, जो सामान इंग्लैंड पूरी दुनिया को दे रहा था अब फ्रांस, जर्मनी सब देने लग गए, तो इससे जो है इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो गई, तो युद्ध का कारण बन गई। जब केवल साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश पर कब्जा करना ही संभव था तो उपनिवेश से इस बंटवारे से युद्ध की संभव बनाया। और 19वीं सदी के आखिरी तिमाही में कहते जर्मनी ने ज़बरदस्त आर्थिक औद्योगिक प्रगति कर ली, क्योंकि उसने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया और जर्मनी ने अधिक प्रगति कर ली और इंग्लैंड और फ्रांस के औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी जो है छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई व्यापारी कहीं व्यापार करता है, अगर उसका व्यापार अच्छा चल रहा होता है, कोई दूसरा व्यापारी आ जाता है और उसका व्यापार छीन जाता है, तो जनरल सी बात है उनमें युद्ध का कारण बन जाता है। अब देखिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी काफ़ी उस समय उपनिवेश की तलाश में थी, लेकिन देखा जाए इसमें जर्मनी जो है बाजी मार गई और उसका औद्योगिक इतनी प्रगति हुई और इंग्लैंड और फ्रांस पीछे रह गए। उससे भी ब्रिटेन की तरह आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपनिवेश की आवश्यकता थी और उसको और उपनिवेश चाहिए और मार्केटिंग करना था। साम्राज्यवादी दौर में जर्मनी इंग्लैंड के मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया, यानी साम्राज्यवादी के दौर उस समय चल रहा था जहां जर्मनी जो है इंग्लैंड के मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया,
यानी जब व्यक्ति आमने सामने कुछ सामान बेचते हैं या उसको लगाते हैं तो वो प्रतिद्वंदी कहलाते हैं। ब्रिटिश की नौसेना सुरक्षा को भी चुनौती दी गई थी। जब जर्मनी का सबसे बड़ा युद्धपोत का निर्माण किया तो उसके कील की लहर से उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर जो अंग्रेजी तट की रेखा में जोड़ दिया गया था। और जर्मनी में भी एक रेलवे लाइन बगदाद के साथ बर्लिन को जोड़ने की रेखा है, जिसे आसमान के कारणों के लिए जर्मनी को सैनिकों और पूर्व के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भेजना आसान बनाने का निर्णय किया गया, लेकिन इसे वहाँ ब्रिटिश उपनिवेश के लिए खतरा समझा गया। यानी जब उसने वहाँ पर रेलवे लाइन की विस्थापन कर दिया तो ये ब्रिटिश उपनिवेश के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में देखा और कारण भी यही बना। जर्मनी की जापान और यूरोप की अन्य सभी शक्तियों की तरह ही अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। यानी जर्मनी की जापान और यूरोप के अन्य सभी शक्तियों की तरह ही जर्मनी का भी महत्वाकांक्षा थी साम्राज्यवादी की। और इटली अपने एकीकरण के बाद उत्तरी अफ्रीका में त्रिपोली जो कि तुर्क साम्राज्य के अधीन था चाहता था, और फ्रांस मोरक्को के अफ्रीका में अपनी विजय को जोड़ना चाहता था, जबकि रूस ईरान में अपनी महत्वाकांक्षा रखना चाहता है। रूस ईरान में अपनी महत्वाकांक्षा का परमाणु चलाना चाहता था। जापान के सुदूर पूर्व में उसकी महत्वाकांक्षा थी, यानी जापान का जो इंटरेस्ट था सुदूर में था, जहां वह 1905 में रूस और जापानी युद्ध के बाद उसके प्रभाव विस्तार करने में सक्षम हो चुका था। ऑस्ट्रिया ऑटोमन साम्राज्य में उसकी महत्वाकांक्षा थी, यानी ऑस्ट्रिया का जो था ऑटोमन साम्राज्य में उसकी महत्वाकांक्षा थी, जबकि अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। यानी उस समय अमेरिका कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने आप को पावरफुल शक्तिशाली बना रहा था। उसकी मुख्य दिलचस्पी के लिए व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में थी। यानी अमेरिका सिर्फ व्यापार की रक्षा के रूप में अपना वहाँ दायित्व निभा रहा था। अमेरिका किसी देश को उपनिवेश नहीं बना रहा था उस समय, वो तो कहते संसाधनों को जुटा रहा था, इसलिए वह एक तेज गति से बढ़ रहा था। संसाधनों को जुटा के अपने आप को पावरफुल अमेरिका बना रहा था, और किसी भी महान शक्ति के प्रभाव के विस्तार कहते विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। यानी विस्तार विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा का सबब बना। प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक आया है गठबंधन की प्रक्रिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि गठबंधन की प्रक्रिया जो थी प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य तौर पे देखने को हमें मिली। कहते हैं अधिक कॉलोनियों के लिए विरोध और टकराव ने साम्राज्यवाद शक्तियों का सहयोगी दलों के लिए देखने के लिए प्रेरित किया, और 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ने ट्रिपल अलायंस पर अपनी विरोधी शक्ति के खिलाफ आपसी सैन्य सहायता की संधि पर हस्ताक्षर किया। यानी 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने ट्रिपल अलायंस पे हस्ताक्षर किया गया। तो आप समझ सकते हो युद्ध का सूत्रपात बहुत पहले ही हो गया था। और इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने 1907 में ट्रिपल अनंत पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये महत्वपूर्ण थी। दो परस्पर शत्रुपूर्ण विरोधी समूहों के उद्भव और यूरोपीय शक्ति के बीच तनाव और संघर्ष ने यूरोप को दो गुटों में उस समय विभाजित कर दिया, और इन देशों में एक दूसरे के घातक हथियार रखने के चाहने हथियारों के उत्पादन की दौड़ का नेतृत्व भी किया गया। यानी इस समय घातक हथियार रखने की एक होड़ सी लग गई, क्योंकि उनको पता था कि आने वाला समय में अगर अपना वर्चस्व हासिल करना है तो इसके लिए हथियार भी ज़रूरी है। और आपसी नफरत और संदेह ने शांति की वातावरण को समाप्त कर दिया, क्योंकि आपसी नफरत, अब देखिए अभी के समय प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है, एक्चुअली में युद्ध निजी हो रहा है। इसमें सिर्फ यूक्रेन की और कहते हैं दोनों देशों की आपसी युद्ध है। कोई इस युद्ध में कोई नागरिक का कोई इसमें महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, या कोई नागरिक के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। ये सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये निजी युद्ध है। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ कि आपसी नफरत और संदेह ने शांति के वातावरण को समाप्त कर दिया, क्योंकि जब नफरत करोगे एक दूसरे से और तो आप नेता हो तो जर्नल सी बात है कि ये पूरे विश्व को, पूरे देश को ले डूबेगा।
कहते हैं विश्व तो बाद की बात है, पहले तो आपका देश ही ले डूबेगा। तो ऐसा ही हुआ। नेताओं के आपसी मतभेद के कारण प्रथम विश्व युद्ध को जो है सूत्रपात किया गया और इस बात का स्पष्ट प्रचार भी किया गया कि अगर युद्ध हुआ तो पूरे यूरोप जो है युद्ध में डूब जाएगा। यानी ये आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि पहले से उन्होंने जो है गठबंधन की प्रक्रिया शुरू कर लिया था और उनको पता था कि जो देश एक साथ रहेंगे उनकी विजय संभवतः होगी ही होगी। इसलिए आपको पता है कि युद्ध में जो है दो ध्रुव बनाया गया, एक जो था मित्र राष्ट्र, एक था ध्रुवी राष्ट्र। तो इन्हीं के कारणों से जो है युद्ध का जो है सूत्रपात हुआ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत अगला पॉइंट जो है पान स्लैब आंदोलन और बल्काना राजनीति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। पान स्लैब आंदोलन और बल्काना राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर इसकी बात करें तो देखा जाता है इसमें कि पूर्वी यूरोप के बल्काना क्षेत्र में ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्वेरिया, मोंटेनेग्रो और कई अन्य छोटे राज्य शामिल थे। यानी यूरोप के बल्काना क्षेत्र में कई राज्य सम्मिलित थे, जैसे ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया और सर्वेरिया और मोंटेनेग्रो। कहते हैं मूलतः ये राज्य तुर्क साम्राज्य या तुर्की के शासक के नियंत्रण के अधीन थे। यानी ये सारे के सारे राज्य जो थे तुर्की साम्राज्य या तुर्की के शासक के अधीन थे। और 20वीं सदी के शुरुआत में तुर्क साम्राज्य में गिरावट शुरू हुई। यानी तुर्क साम्राज्य तो वो काफ़ी गिरावट महसूस की गई, यानी राज्य का जो है पतन होने लग गया। ऑस्ट्रिया और रूस समेत कई यूरोपीय शक्ति इन क्षेत्रों में पैर जमाने के लिए पहुंची। अब देखिए, ऑस्ट्रिया और रूस जो था तुर्की पे अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। यानी यूरोपीय शक्ति इस क्षेत्र में अपना पैर जमाने के लिए अग्रसर थे। बात तब और जटिल बन गई जब इन राजाओं के अधिकांश में लोगों ने राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ। लेकिन इसी क्षेत्र में जो है राष्ट्रवाद ने जन्म ले लिया और राष्ट्रवाद जन्म होने के कारण जो है बहुत ही उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। उन्होंने स्लैब कहा जाता था क्योंकि वो लोगों को स्लैब कहते थे और वह पूर्वी यूरोप देशों में कई राज्यों में बिखरे हुए थे। यानी ये संगठित नहीं थे, बिखरे हुए थे। और उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दी। यानी इन्होंने इसके विरुद्ध एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया और इसको पान स्लैब आंदोलन कहा जाता है। अपने आप को बचाने के लिए आंदोलन करना स्वाभाविक थी और इस आंदोलन को जो है पान स्लैब आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इनकी मुख्य मांग थी जो है साइबेरिया, क्योंकि साइबेरिया जनसंख्या के तहत एक स्लैब राज्य था। यानी देखा जाए साइबेरिया जो थी एक स्लैब, ठीक है, राज्य थी। साइबेरिया का रूस द्वारा समर्थन भी किया गया था। साइबेरिया का रूस ने इसका समर्थन भी किया था, जबकि ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया और उनके राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया था। क्योंकि ऑस्ट्रिया का तो सिंपल सी बात है, उस पर कब्जा करना था, तो विरोध इस आंदोलन में करेंगे ही करेंगे। लेकिन रूस ने इसमें समर्थन किया, ये भी बात इंपॉर्टेंट थी। इसे रूस और ऑस्ट्रिया के बीच जो था तनातनी हो गई। अब देखिए, ये सूत्रपात्र थी। कहते हैं साइबेरिया रूस का समर्थन किया कि साइबेरिया ने इस जो है पान स्लैब आंदोलन अच्छा किया, लेकिन ऑस्ट्रिया इस बात के समर्थन में खिलाफ था, इस विद्रोह के खिलाफ था। इसलिए आप देखिए रूस और ऑस्ट्रिया के बीच जो है काफ़ी प्रतिद्वंद्विता का जो है होड़ शुरू हो गई। यानी प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कि आपके सामने जो है प्रतिद्वंदी है, यानी प्रतिद्वंदी के रूप में वो जो है खड़ा हो गया रूस के सामने ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मजबूत साइबेरिया राज्य था, लेकिन देखा जाए उस समय ऑस्ट्रिया जो था मजबूत साइबेरिया राज्य था जो अपने विस्तार की महत्वाकांक्षा में बंधा नहीं रहता था। यानी महत्वाकांक्षा में बंधा नहीं रहता था। 1908 में ऑस्ट्रिया ने 2 स्लैब राज्यों बेसिनिया और हेर्ज़ेगोविना पर कब्जा कर लिया, जो साइबेरिया और ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बना उस समय। यानी ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि इसका महत्वाकांक्षा ही था पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित करना, और ऑस्ट्रिया ने 2 स्लैब राज्य बेसिनिया और हेर्ज़ेगोविना पर जो है कब्जा कर लिया और इस वजह से साइबेरिया जो था ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। और 1912 से 1914 के बीच में 4 बल्कान राज्यों में स्वतंत्रता के लिए तुर्क सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़े गए। अब देखिए 1912 से लेकर 14 तक, यानी देखा जाए तो बहुत कम समय काल है, लेकिन इसी समय काल में 4 बल्कान राज्यों में स्वतंत्रता के लिए 4 युद्ध लड़े गए हैं।
लेकिन इसमें देखा जाए तो तुर्की हार गया। तुर्की जो थी यहाँ पर हार हुई। ठीक है, यानी तुर्की के सम्राट के खिलाफ ये 4 युद्ध लड़े गए, लेकिन इसमें तुर्की जो था हार गया और यूरोप में उसकी संपत्ति समाप्त हो गई, क्योंकि पावरफुल था, सारे युद्ध में संपत्ति खत्म हो गई, अब उसके पास कोई संपत्ति बच नहीं गई। और ऑस्ट्रिया ने जल्दी से सर्बिया की महत्वाकांक्षा के खिलाफ अल्बानिया के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यानी महत्वाकांक्षा नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में भी जो है राज्यों का बंटवारा होने लग जाता है। आपने देखा ही होगा बिहार 2 राज्य में कन्वर्ट हो गया, किस किस में आपको पता ही है, झारखंड और बिहार में कन्वर्ट हो गया। इवन कि अब जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, आपको पता ही है। हैदराबाद भी अब 2 भागों में बट गया है। तो आखिर ये जो है समय समय पर राज्य के बंटवारा क्यों होते हैं दोस्तों? राज्य का बंटवारा इसलिए लोग करते हैं कि इससे उनको जो है शासन मिल सके और वो शासन कर सके एक राज्य में बिना कोई फिक्र की। अब मान लीजिए एक राज्य है, पहले अगर राज्य रहा होगा बिहार और जो है झारखंड का, तो एक मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब देखा जाए 2 हो गया, यानी 2 को शासन मिल गया। तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग जो है राज्यों की बंटवारा करने में ही अपना समझदारी समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं राज्य की बंटवारा करने में कभी समझदारी नहीं है। अब समझदारी कैसे हो सकती है? अब देखिए, ये बात पे मैं जो है प्रश्न उठाता हूँ कि दिल्ली में पानी इतनी गंदी है और वहाँ के लोग पीने में मजबूर है, लेकिन हरियाणा में पानी साफ है। अब राज्य अलग होने के कारण क्या हुआ? वो उसको पानी नहीं दे रहा, वो पानी से लेकर ले वो मांग रहा है, फिर भी दिया नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हो ना कि जितना राज्यों का बंटवारा हो जाएगा, भारत उतने ही मुसीबतों में से घिर जाएगा। इसलिए राज्यों की बंटवारा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने राज्य बटेंगे उतने जो है मंत्रियों के पद मिलेंगे और इससे जो है भारत का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था खोखला होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, गवर्नर होता है, उसके मंत्री परिषद होते हैं, उनके सारे जो होते हैं सलाहकार होते हैं, नए नए तरह तरह के फैसिलिटी होती हैं। और इतने राज्य छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे तो कितने सारे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और इसका पैसा कहाँ से आएगा? आएगा तो आम गरीब बंदों से जाएगा ना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों के बंटवारा करना कहीं की समझदारी नहीं है। और यही बात यहाँ भी करके दिखाया गया कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी से ग्रेट सेवेरिया को महत्वाकांक्षा के खिलाफ अल्बानिया को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। अब दुश्मनी में एक तरफ सेवेरिया और रूस थे, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया था। अब देखिए बात बन गई ना कि यहाँ पर सेवेरिया और रूस एक तरफ थे और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया था। जैसा कि आप 1914 के दौर देख सकते हैं कि यूरोप में माहौल विस्फोटक था। माहौल जो थी इतनी गर्मासी गई जो कभी भी विस्फोट हो सकता था, कभी भी जो है युद्ध का रूप धारण कर सकता था। और इस पृष्ठभूमि के खिलाफ फ्रांसिस फर्डिनांड ऑस्ट्रेलिया के सिंहासन के लिए बारिश एक राज्य की यात्रा पर सरबोसोस बेनेनिया की राजधानी के लिए गए और वो अपनी कार के नीचे उतर ही रहे थे कि एक साइबेरिया युवा के द्वारा 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी। अब देखिए, एक साइबेरिया युवा के द्वारा, लेकिन अगर आप इसकी तह तक पहुंचोगे ना तो एक साइबेरिया वो युवा नहीं रहा होगा, उसका लिंक कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं के साथ 100% होगा, क्योंकि वो तो युद्ध करवाना चाहते थे। और इससे अच्छा माहौल कैसे गरमा सकता है? इसमें जो है देखिए ऑस्ट्रिया के सिंहासन के वारिस यानी राजकुमार की हत्या, ये तो आम बात नहीं थी। अब ऑस्ट्रिया के सिंहासन के बाद अब ऑस्ट्रिया कैसे चुप रह सकता है जब उसकी जो है राजकुमार की हत्या कर दिया गया, यानी 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी गई। और वो भी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड दी गई है, एक सिरवैया युवा के, युवा मतलब आम बंदा। लेकिन देखा जाए अगर आप इसकी विस्तार से अगर इसका अध्ययन करोगे तो आपको एमए के सब्जेक्ट में पता लगेगा कि ये आम युवा नहीं था, इसका लिंक नेताओं के साथ था, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ युद्ध के कारण तलाश रहे थे और ये सबसे बड़ा कारण बना। और कहते हैं उसकी हत्या कारण जो आर्थर फ्रांस की हत्या युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया। अब देखिए, आर्थर फ्रांसिस फेडरस की हत्या युद्ध का सबसे बड़ा तत्कालीन कारण बना। यानी ऑस्ट्रिया के सिंहासन के वारिस राजकुमार की जब हत्या कर दी गई 28 जून 1914 में, तो इस समय जो है तत्कालीन विश्व युद्ध का सबसे बड़ा सूत्रपात बना दिया।
और ऑस्ट्रिया के सर्बिया को अपने राजकुमार की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यानी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जो है इसकी हत्या का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यहाँ पर बताया गया सिर्फ एक युवक ने हत्या किया। आप क्योंकि आपको पता है कोई भी जो बड़े बंदे वो तो हत्या करने जाएंगे नहीं, तो ये ऑस्ट्रिया ने साफ बता दिया कि सर्बिया के अपने राजकुमार की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया और उसने विभिन्न शर्तों के साथ एक अंतिम चेतावनी दी थी। अब वो अंतिम चेतावनी क्या थी? इसमें रूसी मदद का आश्वासन दिया गया। सर्वेयस ने अल्टीमेट स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो दिया गया अल्टीमेट वो स्वीकार करने से उसने साफ मना कर दिया। अब ऑस्ट्रिया जो था इस पर काफ़ी भड़क गया और सीमा पर अपने सैनिकों के जो जुटाने शुरू कर दिए और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। ये 28 जुलाई 1914 पहला युद्ध का सूत्रपात था प्रथम विश्व युद्ध के, और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की और 1 अगस्त 1914 में जर्मनी के रूस पर युद्ध की घोषणा की गई। अब देखिए हर एक देश ने दूसरे देश पे जो है युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन इसका सूत्रपात कहाँ से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रिया के जो है राजकुमार की हत्या से, और इसका दोषी किसको माना गया? सर्बिया को माना गया, और इसी वजह से सर्बिया को जो अल्टीमेट दिया गया ऑस्ट्रिया के अंतर्गत, लेकिन सर्बिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसी कारण जो है इस समय जो है सीमा पर लगाना शुरू किया और युद्ध का सूत्रपात हो गया। कहते 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की, यानी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी और 1 अगस्त 1914 जर्मनी रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने रूस पर अटैक कर दिया और 3 अगस्त 1914 में जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने फ्रांस पर। अब जर्मनी सैनिक ने बेल्जियम में प्रवेश किया और इंग्लैंड में जर्मनी पर युद्ध की घोषणा अगस्त 1914 में कर दी। अब सब देश एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिए और इस प्रकार यूरोप में एक छोटी सी घटना में सभी देशों को शामिल होने के से युद्ध से जल्द ही विश्व युद्ध का आकार ले लिया। यानी देखिए छोटी सी घटना जिसमें समझौता भी की जा सकती थी, जिसमें कुछ बात से जो उसको टाला भी जा सकता था, लेकिन ये विश्व युद्ध का जो है कारण बना दिया। कहते हैं अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रथम विश्व के अंतर्गत कि प्रथम विश्व युद्ध की कार्यविधि। अब प्रथम विश्व युद्ध के कार्यविधि किस प्रकार थी, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। और ये समय काल था जो था 1914 से लेकर 1918 तक। कहते हैं 9 अगस्त 1914 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ वो नवंबर 1918 तक जारी रहा। यानी ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे और नवंबर 1918 में ये ख़त्म हुआ। और इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे 1914 मार्नो की लड़ाई, 1916 में बैडू की जो है शतरंज सेमो की लड़ाई और जो है जूटो लैक्स की लड़ाई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ इस समय लड़ी गई। कहते हैं 1917 में जो है 1917 वर्ष 2 महत्वपूर्ण घटनाओं ने देखा गया। यानी वर्ष 1917 वर्ष के 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा गया। इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रविष्टि थी, यानी दूसरे नंबर में रूस का इस युद्ध से अलग होना। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने अंडर आना चाहता था इस युद्ध के अंतर्गत, और दूसरी नंबर में जो है रूस इस युद्ध से अलग होना चाहता था। 1915 में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लुई लिसोपेनिया के जर्मनी के यू बोट की डुबा दिया। अब देखिए अब कारण कहाँ से कहाँ बना। एक ब्रिटिश यात्री जहाज लिसोपेनिया के जर्मनी के यू बोट की डुबा दिया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक यात्रा कर रहे थे। अब ये सूत्रपात था पावरफुल अमेरिका का एंट्री की। अब उनकी हत्या हो गई थी। अमेरिकी सेनेट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। यानी अमेरिका में एक दल है, उसे सेनेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप बीए आगे करोगे तो सीनेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो अमेरिका में सीनेट जो था महत्वपूर्ण दल था, जो सारे रूल रेगुलेशन वहाँ बनाया जाता है। यानी सीनेट का कार्य होता है कि सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और सीनेट ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के अलावा जर्मनी अमेरिका स्वच्छता के लिए खतरा पैदा कर सकता था। यानी जर्मनी अमेरिका स्वच्छता के लिए जो है अमेरिका का वर्चस्व के लिए एक खतरा पैदा कर सकता था। और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार और गोला बारूद का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा था। अमेरिका सदैव ही यही कार्य किया है। वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं
युद्ध करता, वो हमेशा किसी भी देश को हथियार बना के अटैक करता है। जैसे आप यूक्रेन को भी आप समझ सकते हो, यूक्रेन तो बहुत छोटा था और युद्ध तो पहले ही ख़त्म हो जानी थी, लेकिन अमेरिका के सहयोग के कारण आज जो है ये काफ़ी पावरफुल बनता जा रहा है। और ये पावरफुल कहते हैं यूक्रेन नहीं बन रहा है, पावरफुल अमेरिका बन रहा है, क्योंकि वो सिर्फ गोला बारूद दे रहा है और जैसे चाहे युद्ध जीता जाएगा वो सभी संसाधनों पे कब्जा कर लेगा। और यही कहानी जो था प्रथम विश्व युद्ध में भी वो ऐसा ही कर रहा था। वो अमेरिका जो है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार और गोला बारूद का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा था। यानी वो सिर्फ हथियार दे रहा था कि वो हथियार से वो युद्ध करे और दूसरे राष्ट्र को जो है ख़त्म करे। कहते हैं युद्ध की निरंतरता के कारण अमेरिका के आर्थिक लाभ में काफ़ी वृद्धि हो गई। यानी इस समय देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते ये समय होता है जब कोई भी राष्ट्र पावरफुल बनता है, और अमेरिका ने क्या किया, सारे हथियार गोला बारूद जो है राज्यों को देने स्टार्ट कर दिए और उनसे जो है मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। और निरंतर के कारण अमेरिका के आर्थिक लाभ में काफ़ी वृद्धि हो गई। और इन सब के ध्यान में रखते हुए उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला भी कर लिया, क्योंकि उसने क्या किया, धीरे धीरे सारे पैसे संपत्ति जो है इकट्ठा कर लिया। दूसरी बड़ी घटना रूस का युद्ध से अलग होना, यानी दूसरी बड़ी घटना थी कि रूस का जो है युद्ध से अलग हो जाना। पहली घटना तो अमेरिका के अपनी स्टोरी से समझ ली। कहते हैं 128 लोगों की बदला लेने के लिए इसने जो है युद्ध में नहीं कूदा, वो सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करने और जो है विश्व में नंबर 1 बनने के होड़ में उसने ऐसा किया। क्या आपको रूस के 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में पढ़ा ही होगा। अक्टूबर क्रांति जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है और इसका वीडियो भी है इसमें उपलब्ध, आप देख सकते हो। क्रांतिकारियों की मुख्य मांगों में एक शांति थी। क्रांतिकारी जो थे वो सिर्फ शांति चाहते थे। तो तुरंत लेनिन ने के नेतृत्व में क्रांति के बाद रूस युद्ध के अलग हो गया। लेनिन जो था नेता ने क्या किया, नेतृत्व में कारण क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया और 1918 में जर्मनी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब सोचेगा लेनिन कौन है और लेनिन के बारे में जानिएगा। तो ये 9th क्लास के जो बच्चों के हिस्ट्री के जो टॉपिक है उसमें लेनिन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो उसमें लेनिन जो था वो बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था और ये युद्ध वो नहीं चाहता था, इसलिए जो था इस युद्ध से अलग हो गया। और 1918 में जर्मनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर की गई। लेनिन बहुत समझदार था, उसने इस युद्ध से जो है अपने आप को अलग कर लिया और 1918 में जर्मनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। कहते जुलाई 1918 से जर्मनी पतन शुरू हुआ, लेकिन देखा जाए तो जुलाई 1918 से जर्मनी का पतन शुरू हो गया और बुल्गारिया और तुर्की ने जो सितंबर और अक्टूबर में क्रमशः आत्मसमर्पण कर दिया। यानी बुल्गारिया और तुर्की ने भी अपने आप को युद्ध से अलग करके जो है आत्मसमर्पण कर दिया। 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया के सम्राट ने ऑस्ट्रिया में व्यापक असंतोष के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए युद्ध जो था ऑस्ट्रिया से शुरू हुआ था और अंत में जो है ऑस्ट्रिया को ही जो है आत्मसमर्पण ही करना पड़ा। और जर्मन लोगों द्वारा इसी तरह के विद्रोह करने के बाद जर्मन सम्राट विलेम द्वितीय ने हालैंड भाग गए और जर्मनी एक गणराज्य घोषित हो गया। क्योंकि जनरली सी बात है, सम्राट विलेम द्वितीय जो थे हालैंड भाग गए और जर्मनी जो था एक गणराज्य घोषित कर दिया गया और नई सरकार पर जो है 11 नवंबर 1918 और विश्व युद्ध के अंत के लिए जो है युद्ध विराम पर हस्ताक्षर भी किए गए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। युद्ध के दौरान मशीन गन्स, जहर गैस, तरल आग, पानडुब्बी और टैंक रूप में कई नए हथियार का इस्तेमाल किया गया। यानी देखा जाए तो ये वो दौर थी जहां पर नए नए हथियारों का जो है सूत्रपात किया गया था और नई रणनीतियों और सैन्य तकनीकी पक्षों द्वारा प्रयोग भी किया गया था। यानी देखा जाए तो ये समय काल था जहां पर लोगों ने हथियार के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ समझा। इंग्लैंड ने नौसेना और आर्थिक नाकेबंदी और टैंकों और हवाई हमलों का इस्तेमाल इस समय बेखूबी किया। यानी इंग्लैंड ने नौसेना, आर्थिक नौकेबंदी, टैंक और हवाई जो हमलों का बखूबी इसमें बहुत इस्तेमाल किया। और फ्रांसीसियों ने युद्ध में गहरी जो है इस्तेमाल रणनीति की और जर्मनी ने यू नाव और पनडुब्बी का समुद्र में जहाज डुबाने के लिए इस्तेमाल किया। यानी सब ने कुछ ना कुछ जो है इस युद्ध में प्रयोग किया जिससे उनकी वर्चस्व बनाया जा सके।
यदि बात करें प्रथम युद्ध के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन परिणाम, आखिर प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन परिणाम क्या देखने को मिले। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दुनिया के सबसे विनाशकारी और भयावह घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है, यानी विनाशकारी और भयंकर युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। इसमें निर्दोष नागरिक सहित 1 लाख लोगों को उनके जीवन से हाथ धोना पड़ा। नागरिक सहित 1 लाख लोगों को जो है जीवन से हाथ धोना पड़ा। अधिकांश यूरोपीय देशों में बड़े पैमानों पर संपत्ति का नुकसान हुआ। संपत्ति का नुकसान तो कहते हैं आम बात थी, सबसे अधिक नुकसान यहाँ पर हुआ तो वो हुआ पर्यावरण को। कुल खर्च 180 अरब डॉलर के जो है चौंका देने वाले आंकड़े का अनुमान लगाया गया था। देखिए 180 अरब डॉलर को जो है इसमें नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश देश की अर्थव्यवस्था टूटने लगी और चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई। क्योंकि जर्नल सी बात है 180 अरब डॉलर अगर इसमें खर्च होगी और जनजीवन नुकसान होगा तो कैसे जो है अर्थव्यवस्था जो है टूटेगी नहीं। जर्नल सी बात है, सामाजिक तनाव आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी तो फैलेगी फैलेगी। जनवरी से जून 1919 के बीच मित्र देश की शक्तियां वर्साई के महल में सम्मेलन में मिले थे, यानी मित्र शक्ति जो थी वर्साई के महल में सम्मेलन में मिले थे, जिसमें पेरिस को पराजित और शक्तियों की भविष्य तय करना था, यानी पराजित शक्तियों का भविष्य तय करना था। हालांकि लगभग 27 देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया और निर्णय ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यों के प्रमुख के द्वारा लिया गया। यानी देखा जाए तो इसमें जो है मेन उभर के जो यहाँ पर देश आया वो निर्णय लिए गए, ब्रिटेन ने लिया, फ्रांस ने लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर निर्णय लिया। रूस को बाहर रखा गया था और पराजित शक्तियों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी और मित्र राष्ट्रों ने पराजित शक्तियों के साथ विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर भी किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वर्सल की संधि पर जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किए गए थे और ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन के संधि और तुर्की के साथ कार्य करने की संधि थी। वर्सल की संधि से जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक सैन्य रूप से बिखर गया, क्योंकि वर्सल की संधि जो थी, वर्सल की संधि महत्वपूर्ण थी और ये जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी बिखर गया। जर्मनी को आक्रमणकर्ता का दोषी ठहराया गया था और युद्ध के लिए जो है मुआवजे के रूप में पैसों की एक बड़ी राशि भुगतान करने के लिए कहा गया। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो देश हार गए थे उनको दोषी ठहराया गया और उनको मुआवजा के लिए बहुत बड़ी रकम देने को कहा गया। अलेक्सिस और लैरन को फ्रांस में 1871 में मिला लिया गया था। फ्रांस में जो है अलेक्सिस और लैरन को जो है फ्रांस में मिला लिया गया। और देखा जाए तो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक गैर सैन्यकरण किया हुआ और मित्र देशों की शक्तियों के नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया था और कोयला समुद्र द्वारा घाटी 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया, क्योंकि इससे फ्रांस को काफ़ी लाभ हुआ। जर्मन सेना को भंग किया गया था और जहाज़ों को डुबा दिया गया और केवल 1 लाख सैनिकों को जो है प्रतिबंधित किया गया था। जर्मनी को उसके सभी उपनिवेश को वंचित कर दिया गया, यानी जर्मनी को सारे उपनिवेश से वंचित कर दिया गया और यूरोप में उसके बहुत से प्रदेशों को जो है बेल्जियम और पोलैंड को दे दिए गए। तो ये महत्वपूर्ण बात था। और सेंट जर्मन के संधि में ऑस्ट्रिया ने हंगरी को अलग कर दिया गया और हंगरी को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था। ऑस्ट्रिया को हंगरी और स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की गई थी कि उसे अपने प्रदेशों के लिए हिस्से में चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूगोस्लाविया को देने के लिए बाध्य किया गया। अब देखिए ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि ऑस्ट्रिया से हंगरी की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उससे जो है चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया और यूगोस्लाविया ये तीनों राज्य देने के बाध्य किया गया और ये तीनों जो राज्य थे बहुत महत्वपूर्ण थे और इन्हीं तीनों को लेने के कारण जो है दूसरा युद्ध भी लड़ा गया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध का कारण यही 3 राज्य बने। कहते सर्वस की संधि ने तुर्क साम्राज्य का पतन कर दिया और इसे कुछ राज्यों को जो है जान देश के रूप में मित्र देशों को अधिकार में दे दिया गया, क्योंकि इससे जो हुआ वो मित्र देशों को ही फायदा हुआ
और मित्र देश को सभी जो इम्पोर्टेंट जगह थी वो मिल गया। उदाहरण के लिए फिलिस्तीन और जो मेसोपोटामिया फ्रांस ब्रिटेन और जो है सीरिया को दे दिया गया। सीरिया को जो है दे दिया, फिलिस्तीनिया और मेसोपोटामिया फ्रांस ब्रिटेन और सीरिया को दे दिया गया। मित्र देश इन देशों के तब तक देखेंगे जब तक कि आत्मनिर्भर नहीं बन जाते। अब देखिए इसमें भी बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने ये बात कहा कि जब तक ये उनको देखेंगे जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे। आपको लगता है कि कोई देश उस देश में राज्य कर रहा हो और उसको आत्मनिर्भर बनाने के अग्रसर हो? संभव ही नहीं है। युद्ध और शांति संधियों ने दुनिया के विशेष रूप से यूरोप के राजनीतिक नक्शों को ही बदल दिया। कहते हैं कभी महत्वपूर्ण बात रहती है, अगर कहीं युद्ध होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं दुनिया में जो है नक्शा ही बदल जाता है। जैसे आप देखिए भारत का भी नक्शा कुछ और था, लेकिन जब पाकिस्तान जो है बंटवारा के लिए मांग किया तो भारत का नक्शा ही बदल गया। तो ये कोई भी देशों के लिए हो सकता है। कहते हैं युद्ध किसी भी देश के नक्शा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होती है। कहते हैं रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद जो है रोमानिया और सत्तारूढ़ राजवंश को परास्त किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि रूस में अक्टूबर क्रांति हुई थी जिसमें रोमानिया और सत्तारूढ़ राजवंश को जो है परास्त कर दिया गया था। और युद्ध के अंत के द्वारा जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो है होलजोलर राजवंश हेल्गवर्ग राजवंश को हटा दिया गया, यानी राजवंश की जो है यहाँ पर समाप्ति हो गई। गणराज्य सरकार की स्थापना किया गया और 1922 में क्रांति के बाद तुर्की में भी राजशाही समाप्त कर दिया गया, यानी तुर्की में भी राजशाही सदैव के लिए समाप्त हो गया। पराजित शक्तियों के लिए गए प्रदेशों में दो नए राज्य जो है चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया को बनाया गया। देखिए पराजित शक्तियों के लिए एक प्रदेश में दो राज्य जो है चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया को बनाया गया। हंगरी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उस समय उभरा, यानी हंगरी जो था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। और एस्टोनिया, लिथुआनिया और लात्विया और फिनलैंड स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर के सामने आया। रोमानिया और पोलैंड के राज्यों को आकार बढ़ा दिए गए। रोमानिया और पोलैंड के राज्य के आकार जो है काफ़ी बढ़ा दिया और इससे यूरोप के अधिकांश राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और यह स्पष्ट था कि पराजित शक्तियों के साथ किए गए शांति समझौता और असामान्य जबरदस्ती पराजित शक्तियों पर थोपे गए समझौता थे। ये तो आप भली भांति जानते हो कि ये जो जबरदस्ती और असामान्य समझौते थे और इसको कोई देश नहीं मान रहा था, क्योंकि इससे इनका अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ रही थी। इवन कि कहते हैं बहुत से रकम जो है देशों को चुकाने के लिए भी कहा गया जो पराजित देश थे और कई राज्यों को उनसे छीन भी लिया गया। और यही सब कारण बना दूसरे विश्व युद्ध का भी, जहां हिटलर ने अपना और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इस युद्ध के लिए और इसने युद्ध लड़ा और कहते हैं इस युद्ध में बहुत ही विनाश हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि हिटलर की वहाँ पर जो नीतियाँ थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो लेनिन का भी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा था, जिसके बारे में हम जो सेकेंड विश्व युद्ध के अंतर्गत बात करेंगे। कहते बिना विमर्श जो है विचार विमर्श किए हुए थे, क्योंकि सारे समझौते जो थोपे गए थे उन पे वो बिना विचार विमर्श किए, क्योंकि आपने अभी पढ़ जाना भी है कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो पराजित देशों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मित्र राष्ट्रों ने अपनी मनमर्जी की सारी बातें बनाई और उनको जो है पराजित देशों को जो है समझौता जो है ज़बरदस्ती थोप दिया गया। युद्ध के अंत में यूरोपीय वर्चस्व के अंत और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है प्रमुख शक्तियों के रूप में उद्भव भी देखा गया। यानी इसमें जो है दो मेन राष्ट्र उभर के सामने आए। यूरोपीय वर्चस्व के अंत को जो है सोवियत संघ ने फायदा उठाया और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शक्ति के रूप में उद्भव का सामने आया। और इसी अवधि में एशिया अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती बनते देखा गया। यानी देखा जाए तो इस युद्ध ने एशिया अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती बनते देखा गया। और इससे पहले भी नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त होता तो कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक शांति कार्यक्रम प्रस्ताव भी किया, जिसे विल्सन के 14 सूत्रों के रूप में जाना जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है शांति और सुरक्षा स्थापित करना, लेकिन जब कहते हैं हम
जो है बम और गोली और बारूदों के ऊपर खड़े हैं तो शांति और सुरक्षा की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि कहते हैं बड़े बड़े परमाणु बम हथियार जो होते हैं किसी भी कंडीशन से कभी भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो आप शांति की बात वहाँ पर नहीं कर सकते। भारत सदैव ही इन खतरों को जो है आगाह पूरा विश्व को करता आया है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और इस प्रस्ताव के आधार पर लीग ऑफ नेशन जो 1920 में स्थापित किया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चलिए देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन में जो 1920 में स्थापित किया गया आखिर किस बातों की तरफ इशारा करता है। देखिए यहाँ पर आ गया लीग ऑफ, कहते हैं लीग ऑफ जो था 1920 में स्थापित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लीग संगठन जिसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में रखा गया था। यानी लीग ऑफ जो 1920 में स्थापित किया गया ये अंतर्राष्ट्रीय लीग संगठन था जिसका कार्यालय जो था जिनेवा था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। कहते हैं दुनिया में सुरक्षा और शांति तब स्थापित होगी जब ऐसे ऐसे भयंकर युद्धों से जो दुनिया बची रहेगी। भविष्य के युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और सदस्य देशों में श्रमिक की स्थिति में सुधार करना था। अब देखिए हर देश का जो सोच होती है वो अच्छा ही होता है, लेकिन ये सोच ज़मीनी हकीकत पर देखने को कभी नहीं मिलता और यही बात आगे बताई गई है। लेकिन दुर्भाग्य से लीग के लिए जिसके लिए वह स्थापित किया गया था युद्ध और संघर्ष को रोकने में विफल रहा। और यह जापान ने 1936 में मंचूरिया पर हमला किया और 1935 में इटली ने जो है इथोपिया पर हमला किया और लीग कुछ नहीं कर सका। तो कहते हैं लीग सिर्फ बनाई गई थी दिखावा के लिए और इसको जो है शांति और सुरक्षा की कोई बात इसमें जो है साबित करके लीग ऑफ ने नहीं दिखाया। तो दोस्तों यही बात यहाँ आता है, किसी को कुछ करके दिखाना होता है। कहते हैं अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करके नहीं दिखा रहे हो, इसका मतलब वही देश हो, सिर्फ आप बातों को सिर्फ सुनते हो और करते कुछ नहीं हो। जैसे आपको तिरपान स्टडी सेंटर भी बार बार यही बात कहता है कि अगर तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तभी तिरपान स्टडी सेंटर का अगर हेल्प करना है तब आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने के लिए भी अग्रसर होना होगा आपको, क्योंकि तभी आप हेल्प कर सकते हो। कहते हैं सिर्फ देख लेना, समझ लेना और उसके बाद लीव कर जाना, ये सही नहीं है। कहते हैं अगर कोई चीज़ अच्छा है, सही है, तो कहते हैं दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप जो तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो। और यहाँ पर लीग ऑफ की तरह नहीं बनना है कि सिर्फ स्थापित है और करना कुछ नहीं है। कहते हैं जब तक आप भी अग्रसर नहीं होगे तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। और कहते हैं विचारधारा सब अच्छे होते हैं लेकिन अच्छा विचारधारा अच्छा ही होता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में जो आपके कक्षा में पढ़ते हैं, जिनके प्रथम विश्व युद्ध सिलेबस में है, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे आपका +2 हो, 11वीं हो, 12वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, जहाँ मर्जी अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में है तो ये पर्याप्त जो है पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए सोचना नहीं है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।